آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ میئر کراچی نے گلبرگ ٹاؤن میں شاداب گراؤنڈ کی اثر نو تعمیر کے بعد افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں لوگوں کی خدمت ہی ہمارا منشور ہے اور تمام وسائل کراچی کی بہتری پر خرچ کیے جائیں گے۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ گراؤنڈ بھی آباد، سڑکیں بھی تیار۔ میئر کراچی نے ترقیاتی رفتار تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ شہر میں کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے میئر کراچی نے کمر کس لی۔ گلبرگ ٹاؤن میں شاداب گراؤنڈ کی اثر نو تعمیر کے بعد افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ 224 ملین روپے کی لاگت سے 4 ایکڑ پر مشتمل جدید اور معیاری گراؤنڈ تعمیر کیا گیا ہے۔ میئر کراچی کے مطابق اس منصوبے میں پبلک پارک کے ساتھ ساتھ واکنگ ٹریک جیسی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں تاکہ شہریوں کو تفریح اور کھیل دونوں کی بہتر سہولت میسر آ سکے۔ نہ صرف جو کھلاڑی ہیں، سپورٹس مین ہیں، ان کا فائدہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو علاقہ مقیم ہیں ان کا بھی فائدہ ہو، بیکاز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چاروں طرف آبادی ہے، لوگ بستے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر واکنگ ٹریک بھی ہے کہ ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں یہاں پر آئیں اور واک وغیرہ کر سکیں۔ میئر کراچی نے عید کے بعد جہانگیر روڈ کے دوسرے ٹریک پر کام کے آغاز کا اعلان کیا۔ بولے شہر کی اہم سڑکوں پر موجود اسٹریٹ لائٹس کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کراچی کی بہتری کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ جو دوسری سائیڈ ہے جو کہ گرو مندر سے 3 ہٹی کی طرف آئے گی، اس کے کام کو بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے۔ اور میں ایک اور اچھی خبر دوں وہاں کے لوگوں کو کہ جو سڑک جہانگیر روڈ سے یادگار فش کی طرف جاتی ہے نا، اس کا نالا تو ہم نے پہلے بنا دیا تھا، اس کو انشاءاللہ اب ہم بنانے بھی جا رہے ہیں، اس کو بھی پراپرلی بنا کے دیں گے تاکہ وہ پوری آرٹری ٹھیک ہو جائے۔ جو گرو مندر کی سائیڈ ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کر کے دیں گے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے نہال ہاشمی کی بطور گورنر سندھ تعیناتی کو خوشائند قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے گورنر سندھ وفاق سے کراچی کے لیے خصوصی پیکیج دلانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین جہانزیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ عید الفطر کے موقع پر زائد کرسولی کے خلاف سندھ حکومت نے سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام نے پولیس، ضلع انتظامیہ، NHA، ٹریفک پولیس اور ٹرانسپورٹ حکام کو فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ بعض ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں خود ساختہ اضافہ مسافروں پر اضافی مالی بوجھ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے تمام متعلقہ افسران کو اپنے دائرہ اختیار میں بلا امتیاز کارروائی اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا۔ سینئر وزیر نے کہا سرکاری مقررہ کرایوں پر محفوظ اور سہل سفر کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے لیوی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایسوسی ایشن ممبر عبدالحسیب خان کہتے ہیں کہ ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مستقبل میں بھی نہ بڑھ پائیں۔ حکومت ریلیف کے لیے لیوی کو کم کرے۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے پر وزیر اعظم پاکستان کے اقدام کو خوشائند قرار دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مستقبل میں بھی نہ بڑھائی جائیں۔ عبدالحسیب خان ایگزیکٹو ممبر ایسوسی ایشن کا مطالبہ۔ دیکھیں یہ سچویشن تو وار سچویشن ہے ابھی، اور روزانہ اس میں جو چینجز آ رہی ہیں، تو پاکستان کے تو جہاز آ رہے ہیں، مگر یہ بھی ہمیں آگے کے لیے سوچنا پڑے گا کہ یہ جو جہاز آ رہے ہیں تو آگے کی کیا لائے عمل طے ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب نے تو اس کو ہولڈ کر لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر اس کو کب تک ہولڈ کر سکیں گے، کیونکہ اس میں وار ٹیکس بھی لگ گیا ہے، آپ کا انشورنس بھی بڑھ گئی ہے، اور انٹرنیشنل ریٹس بھی اس کے 100 WTI بیرل تک چلے گئے ہیں۔ تو اس کو کب تک کرٹیل کر سکیں گے، اس کے لیے ان کو ایک پرماننٹ سولوشن نکالنا پڑے گا، یا IMF سے ریلیف لے کر لیوی کم کر دیں تاکہ لوگ سکون کی سانس لے سکیں، کیونکہ یہ پھر معاملہ پھر لنگر آن ہوگا نیکسٹ ویک، اور پھر آپ کیا کریں گے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جب ریٹ بڑھتا ہے تو اس کے وجہ سے لوگ بہت ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور ہر چیز انہوں نے نیکسٹ ڈے مہنگی کرنی شروع کر دی، تو پبلک کو ڈبل اس کا ڈینٹ پڑتا ہے۔ ایک تو چیز مہنگی ملتی ہے، اور پھر عام اشیاء جو کھانے پینے کی وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ پورٹ کا بردار جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے اور ملک میں توانائی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان کے مطابق آئل ٹینکر MTS براس پورٹ کو آئل ٹرمینل پر لنگر انداز ہو گیا ہے اور اس سے 55,101 میٹرک ٹن گیس آئل کی ڈسچارجنگ شروع کر دی گئی ہے۔ کارگو کی ترسیل حفاظتی طریقہ کار کے تحت جاری ہے۔ دوسری جانب آئل ٹینکر MT میری ٹائم MT 43,923 میٹرک ٹن آئل لے کر
पोर्ट कासिम भी पहुंच चुका है और जल्द मुतालिका ऑयल टर्मिनल पर बर्थ कराया जाएगा। पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने जहाज़ों की बरवक्त आमदोरफ्त और तेज़ रफ्तार कार्गो हैंडलिंग के लिए मुकम्मल इंतजाम किए हैं ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बिला तातुल जारी रहे। गवर्नर को हटाने में एतमाद में नहीं लिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल ने वफाक से गिला कर दिया। खिदमत खल्क फाउंडेशन की राशन तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा कि कामरान टसोरी तारीख रकम करके गए हैं, हम आवाज़ उठा रहे थे, इतनी सज़ा तो मिलनी थी। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में देखिए। मुत्तहिदा के कामरान टेसोरी के गवर्नरशिप हटाने पर शिकवे, MQM का एतमाद में न लिए जाने का गिला। खिदमत खल्क फाउंडेशन के तहत राशन की तकसीम की तकरीब हुई। वफाकी वज़ीर तालीम के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि गवर्नर को हटाने में एतमाद में नहीं लिया गया, हम आवाज़ उठा रहे थे, इतनी सज़ा तो मिलनी थी। कानून तोड़ने और नाफिज करने वालों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। सबसे ज़्यादा अमीर शहर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। और आज ये देख के हमें दुख हो रहा है कि पाकिस्तान के सबसे अमीर शहर में, और ये वो गरीब हैं जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो देने वाले हाथ थे, आज लेने से कतराते हैं। ये भिखारी नहीं बन सके, ये मांगने वाले नहीं बन सके। इनकी इज्जत नफ्स ना सिर्फ इस शहर में बसने वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मजीद कहना था कि कराची वो शहर है जिसके बजट से पूरे मुल्क में मोटरवे बन गई, मगर इस शहर के लिए कोई मोटरवे नहीं। जो लोग इस शहर में कमाने आते हैं वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं। इसका वाहिद पोर्ट जो है पाकिस्तान का, इसकी ग्रोथ का जो इंजन है, जो इसका इंडस्ट्रियल और कॉमर्स का कैपिटल है, वो इस मोटरवे के जरिए पाकिस्तान से जुड़ा हुआ नहीं है। हैदराबाद कराची के दरमियान, कराची हैदराबाद के दरमियान कोई मोटरवे मौजूद नहीं। और हालात ये हैं कि जो लोग कमाने आते हैं वो डिक्टेट कर रहे हैं। MQM सरबराह ने यह भी कहा कि कराची में आला तालीम के हवाले से इमरजेंसी की ज़रूरत है। कैमरामैन हारिस के हमराह उसामा मलिक, C1। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, महकमे खुराक सिंध में खरबों रुपए की गंदम की गुमशुदगी का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी खुराक गुलाम अब्बास के मुताबिक लाड़काना डिवीजन के सरकारी गोदामों में से 4 अरब 63 करोड़ 87 लाख 22,497 बोरियां गुम हो गई हैं। अफसरान को मुतादिद नोटिस के बावजूद वजाहत न देने पर फाइनल शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। मुतासरा अजला में लाड़काना से 84,274, जैकबाबाद से 38,223 और कुंबर शदाद कोट से 46,386 गंदम की बोरियां गुम हुई। सेक्रेटरी खुराक ने अफसरान को 1 हफ्ते में वजाहत देने की हिदायत की है और वजाहत न होने पर मामला नैब के हवाले करने की तनबीह भी कर दी। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतों में नुमायां इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माश, मसूर और चने की दाल महंगी हो गई है। 2 रोज़ के दौरान दाल मसूर 20 और चने की दाल 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई है। 1 हफ्ते में माश की दाल की कीमत में 40 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 380 से बढ़कर 420 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चने की दाल 180 से 190, जबकि मसूर की दाल 175 से बढ़कर 195 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। ताजिरों का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को जवाज़ बनाकर कीमतें बढ़ाई गई हैं। महमूदाबाद नंबर 5 में कायम मरवत पार्क तबाही की दास्तान सुनाने लगा। महमूदाबाद पार्क के दरवाजे टूट फूट का शिकार और जगह जगह कचरे के अंबार। इलाका मकीन हुकाम से पार्क की फौरी बहाली का मुतालिबा कर रही हैं। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट देखिए। महमूदाबाद नंबर 5 में वाक़े मरवत पार्क अब तफरी का मरकज नहीं बल्कि तबाही की तस्वीर पेश कर रहा है। पार्क की दीवारें और दरवाजे गायब हैं, जगह जगह कचरे से ताफुन फैल रहा है और बैठने के लिए सिर्फ 2 बेंचेस मौजूद हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि ये पार्क 15 साल से तबाहाल है। मंशियात के आदी अफराद ने पार्क को अपनी अमाज का बना लिया है। ये तकरीबन 10-15 साल से ये पहले ही बना हुआ था, बहुत अच्छा बना था, मगर वो सैलाब आ गया। सैलाब में ये दीवारें वगैरह सारा गिर गया। जब ये रोड बना रहा था तो ये रोड भी वो बुलडोजर से ये दीवारें वगैरह सारा उन लोगों ने गिरा दिया है। यहाँ पे झूले भी नहीं है, नाम का पार्क है खाली।
यहाँ पे बच्चे आते हैं मजबूरन खेलते हैं, कोई बीमार हो जाता है इतना। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पार्क की फौरी सफाई और अक्सर-ए-नौ तामीर की जाए ताकि इलाके के लोग बच्चों के साथ महफूज तफरी कर सके। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। विंग 999 क्लब ने 39वें कराची जिमखाना रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेमीफाइनल में फ्यूचर स्टार्स की टीम को 78 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। कराची में रमजान के दौरान खेल की सरगर्मियां। 39वां कराची जिमखाना रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम के करीब पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में फतह के बाद 999 क्लब ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में फ्यूचर स्टार्स की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। विंग 999 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 179 रन स्कोर किए। अब्दुल्ला आलम ने शानदार बैटिंग की। अब्दुल्ला ने 5 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 101 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला आलम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। सिटी 21 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जीत को टीम स्पिरिट का नतीजा करार दिया। शुरू में हमारी 3 विकेटें गिर गई थी क्योंकि सर्कल में सज्जाद इब्राहिम टॉप स्कोरर है, वो अनफॉर्चुनेटली आज आउट हो गया, तो हम लोग 30 पे 3 थे, तो हमने 138 कर लिया जो कि अच्छा टोटल है सेमीफाइनल के हिसाब से। जी, वाहिद अली और आदिल अमीन, अली भट्ट, हम लोग के जो बॉलर्स हैं वो टॉप विकेट टेकर्स हैं टूर्नामेंट में, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको रिस्ट्रिक्ट करें और मैच जीतें। टीम के हेड कोच फखरुद्दीन बलोच ने कहा कि उनकी टीम जबरदस्त खेली। मैंने इनका देखा बॉलिंग से ज्यादा इनकी बैटिंग स्ट्रांग है। अभी बॉलिंग अभी भी कर रहे थे, सऊदी टाइटन में थोड़ी बैटिंग में क्लैप्स हो गए, बाकी इनकी बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, तो होपफुली एक अच्छा फाइनल देखने को आएगा। 14 लाख रुपए इनामी रकम के इवेंट का फाइनल पीर को खेला जाएगा। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। नाज़रीन, ईद उल फितर की तैयारियों के सिलसिले में जहां हर तरफ रौनकें हैं, वहीं इंडस अस्पताल इंतजामिया का एक खूबसूरत और दिल छू लेने वाला इकदाम सामने आया है। कैंसर समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए 6 रोज़ा खुसूसी ईद बाजार सजा दिया गया, जहां नन्हे मरीज दिल खोलकर मुफ्त शॉपिंग कर रहे हैं। इब्राहिम रंद की रिपोर्ट देखिए। के साथ खुशियों का तोहफा, इंडस अस्पताल ने नन्हे मरीजों की ईद भी सजा दी। इंडस अस्पताल ने कैंसर समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए 6 रोज़ा खुसूसी ईद बाजार सजा दिया। इस बाजार का इफ्तिताह अस्पताल के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने किया, जहां नन्हे मरीजों के लिए ईद की खुशियों को यादगार बनाने का एहतमाम किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस खुसूसी ईद बाजार का मकसद जेरे इलाज बच्चों में खुशियां बांटना और उन्हें ईद की रौनकों में शामिल करना है। 11 मार्च से अब तक 3000 से ज्यादा बच्चों में तोहफे तकसीम किए जा चुके हैं, जिसके बाद नन्हे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं और वालिदैन भी इस इकदाम पर बेहद खुश दिखाई दिए। ईद बाजार का दौरा करने वाली शबनम मुनीर और नफीसा दाऊद ने कहा कि इंडस अस्पताल हर साल लाखों अफराद का मुफ्त इलाज करता है और हर खुशी के मौके पर बच्चों को भी उनकी खुशियों में शामिल किया जाता है। 5 सालों से ये बाजार हम लगा रहे हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। 1000 से हमने स्टार्ट किया था और इस साल हम 3000 बच्चों में ईदी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसमें बच्चों के लिए कपड़े, जूते, बॉयज़ के एसेसरीज जैसे कि घड़ियाँ हो गई, कैप्स हो गई, गर्ल्स एसेसरीज जैसे चूड़ियाँ, झुमके। कैंसर के बच्चे जो कि मुल्क के मुख्तलिफ अजला से और इसके अलावा और बैरून मुल्क से भी यहाँ आकर इलाज करवाते हैं। हर साल ये रंगारंग बाजार हम सजाते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि वो यहाँ पर हमारे और आपके साथ ईद की खुशियों को जो है ना मना सके। इंतजामिया के मुताबिक कैंसर से मुतासिरा बच्चों के लिए कपड़े, चूड़ियां, जूते, ईदी और दीगर तोहफे भी तकसीम किए जा रहे हैं। ईद बाजार में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 150 से ज़ायद तुलबा रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 11 मार्च को शुरू होने वाला ये खुसूसी ईद बाजार 16 मार्च तक जारी रहेगा। इब्राहिम रंद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।